Hello, students. Hope you all are staying safe and healthy with your family amidst this coronavirus pandemic. I also hope that you people are following proper guidelines issued by Punjab government, like wearing mask while stepping out, maintaining social distance, washing your hands regularly with soap or sanitizer, while coughing or sneezing, cover your nose and mouth, download Kova app. So students, follow these guidelines, take care and stay safe. So in today's lecture, we are starting with chapter 2, leadership and motivation. These are the contents according to your syllabus. Leadership, we will be covering definition and need of leadership, qualities of a good leader, then comparison of manager and a leader, then theories of leadership, trait theory and behavior theory. Motivation, we will be covering definition, characteristics of motivation, factors affecting motivation, Maslow's need hierarchy theory of motivation and XY need hierarchy theory of motivation. We are starting with leadership today. This is definition of leadership. What is leadership? Leadership is an abstract quality in human beings to induce his followers to do whatever they are directed to do with zeal and confidence. So leadership क्या है? Leadership एक ऐसी quality है जो दिखाई नहीं देती. Abstract means quality which you cannot see. You can only feel it. ये human beings में ऐसी quality है जो अपने followers में क्या induce करती है कि they are to do whatever they are directed to do and they are to do it with zeal and confidence. Zeal means enthusiasm. Enthusiasm means उत्साह से भरकर उन्होंने वो काम करना है और कॉन्फिडेंस के साथ करना है. Leadership is generally defined as influence, the art of process of influencing people so that they will strive willingly towards the achievement of group goals. This is another definition of leadership, that it is an art or it is the process which is an art of influencing people so that they will strive willingly towards the achievement of group goals. Willingly means अपनी मर्जी से वो group goals achieve करने के लिए काम करेंगे. Group goals means group goals जैसे organization का कोई leader है तो organization के जो भी goals हैं वो group goals हैं, तो the followers or the subordinates they will all work hard willingly अपनी मर्जी से काम करेंगे उन group goals को achieve करने के लिए. Next is characteristics of leadership. So first is it is a group process. It involves two or more people interacting with each other. अब naturally leadership जो है ये group process है. ऐसा तो है नहीं कि तुम अकेले हो और तुम्हारा कोई भी follower नहीं है और तुम leader हो. This is not possible. So it is a group process और दो से ज़्यादा लोगों के साथ interact करके ही होता है. It denotes a few qualities to be present in a person which includes intelligence, maturity and personality. तो कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए पर्सन में जैसे इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी, गुड पर्सनालिटी. वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज इन डिटेल ऑल्सो लेटर ऑन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस. अ लीडर मस्ट बी एबल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, एटीट्यूड एंड बिलीव्स ऑफ हिज सबऑर्डिनेट. सो ये इन्फ्लुएंस का सारा चक्कर है कि तुम किसी को कैसे प्रभावित कर सकते हो. A leader must be able to influence the behavior. ये दूसरों को जो लीडर होता है वो उनको उन पे प्रभाव डाल सके, उनका थॉट अपने थॉट प्रोसेस चेंज कर सके अपने सबऑर्डिनेट्स का. जैसे वो सोचते हैं उनकी सोच, उनके बिलीव्स, किस चीज़ में विश्वास रखते हैं वो चेंज कर सके, वो लीडर कहलाता है. It is situation bound. There is no best style of leadership. It all depends upon tackling with the situation. So it is situation bound means जैसी situation है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है. कई बार हमें गुस्से से हैंडल करना पड़ता है, कई बार प्यार से फॉलोअर्स को बात मनवानी पड़ती है. सो दिस इज सिचुएशन बाउंड एंड देयर इज नो बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप. हम स्टाइल्स भी पढ़ेंगे लीडरशिप के. सो देयर इज नो बेस्ट स्टाइल. इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन ओनली कि तुमने कैसे अपने फॉलोअर्स को हैंडल करना है. इट इज द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन गोल्स. तो कॉमन गोल्स को हम अचीव करते हैं. कॉमन गोल्स की बात बार बार करते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लीडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. It exists only with followers. If there are no followers, there is no leadership. So we have in first point also we have talked about it. It is a group process.
हमारे फॉलोअर्स होते हैं एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर फॉलोअर्स नहीं है तो देयर इज़ नो पॉइंट टॉकिंग ऑफ लीडरशिप. नाउ व्हाट इज़ द नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप? तो सबसे पहले तो ये बात है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर अच्छा होगा तो दैट ऑर्गेनाइजेशन विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स सक्सेसफुल पाथ. तो मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन उस रास्ते पे चलने लगेगी कि जहां पे आगे चलकर वो सक्सेसफुल रहेगी, प्रॉफिट में रहेगी. ये सबसे बड़ी बात है. सो इन पॉइंट्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप? It initiates action, it improves motivation, it builds work environment, it provides guidance, it works as an authority, creates confidence, coordination and builds morale. So more or less they are related to motivation. It initiates action. Suppose हमारे followers जो हैं या subordinates जो हैं, they are not doing anything. So once a leader guides them, once a leader shows them the way that you are to perform this job like this, they start doing it. So this initiates action. It improves motivation क्योंकि हर leader अपने subordinates को, अपने followers को उत्साह से भरता है, शाबाशी देकर, reward से, positive motivation से, negative motivation से, punishment देके, डरावा देके, किसी भी तरीके से उसमें motivation improve करके काम करने के लिए प्रेरित करता है. Then it builds work environment. So जैसे ही गाइडेंस मिलती है, डायरेक्शन मिलती है लीडर की, तो एक वर्क एनवायरनमेंट बन जाता है, सब काम करने लग जाते हैं. Then leaders provide guidance also. तो डायरेक्शन मिल जाती है कि किस डायरेक्शन में हमारे गोल्स क्या हैं, किस तरीके से हमने उनको अचीव करना है, ये प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है. Leadership works as an authority. So naturally it works as an authority because it is giving directions to all the subordinates. It creates confidence in subordinates. It coordinates. Then next is coordination. It results in coordination. So सब मिलजुल के काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और कोई भी डिफरेंसेस नहीं रहते, कोई मतलब एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन रहता है अगर लीडर अच्छा है. Then it builds morale. तो मोराल जो है, मोराल मीन्स लोगों में उत्साह कितना है. तो मोटिवेट होने से ऑटोमेटिकली मोराल बिल्ड हो जाता है एंड ऑल द एम्प्लॉइज और सबॉर्डिनेट्स दे रिमेन इन हाई मोराल एंड परफॉर्म गुड. और जब एक बार मोराल हाई होता है तो दे गिव देयर बेस्ट एंड द एफिशिएंसी ऑफ पर्सन इंक्रीजेस. सो एफिशिएंसी इंक्रीज होने से प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से क्या होता है कि प्रॉफिट बढ़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का. और दिस इज ऑल दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स कि हमें हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ता है. सो लीडरशिप से मोराल भी बिल्ड होता है. सो ऑल मोर और लेस मोस्ट ऑफ दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू मोटिवेशन. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ मैनेजर? अब हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर होता है, पर हर ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर हो ये जरूरी नहीं है. मैनेजर इज ऑलवेज अ लीडर, लीडर एक मैनेजर है ये जरूरी नहीं है. सो this table briefly discuss the difference between the two. So first point, scope. Manager plans, organizes, directs, controls and leads the business activities, whereas a leader has limited scope. He is only a part of management. तो मैनेजर को स्पेसिफिकली ये काम दिए गए हैं कि तुमने प्लान करना है, तुमने ऑर्गेनाइज करना है, तुमने डायरेक्ट करना है, तुमने कंट्रोल करना है, तुमने लीड करना है ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज को. बट लीडर को फॉर्मली बताया नहीं जाता है कि यू आर द लीडर. वो उनमें से कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको पूरे अपने साथियों का सपोर्ट है. ही इज ओनली पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. देन अथॉरिटी. मैनेजर डायरेक्ट्स द एम्प्लॉयज थ्रू फॉर्मल अथॉरिटी. वही बात जो पहले मैंने बोली कि उसको फॉर्मली बोला जाता है, एक लेटर देके बोला जाता है कि henceforth you are the manager and you will be looking after the affairs of organization. जबकि जो लीडर है वो इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है. लोग मान लेते हैं कि तू हमारा लीडर है, तू जाके हमारी बात रिप्रेजेंट कर टॉप मैनेजमेंट को. वो उसको खुद ही एक लीडर मान लेते हैं. रिलेशनशिप. मैनेजर हैज रिलेशनशिप विद द सबॉर्डिनेट्स, लीडर हैज रिलेशनशिप विद फॉलोअर्स. तो मैनेजर के अंडर जो भी लोग आते हैं वी कॉल देम सबॉर्डिनेट्स, और लीडर के अंडर जो भी आते हैं वी कॉल देम फॉलोअर्स. Then what is the function? Manager function is functions in organized group और leader functions in unorganized group. अब ये organized group किसने बनाया है? Organization ने बनाया है. एक प्रॉपर ग्रुप बना हुआ है उन्होंने काम के हिसाब से कि तुम सब लोगों ने मिलके ये काम करना है, तुम सब लोगों का काम ये मैनेजर देखेगा.
बट लीडर फंक्शंस इन अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। जरूरी नहीं है कि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो सारे एक साथ काम करते हो, सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में भी हो सकते हैं। सो लीडर जो है उसका फंक्शन, ही फंक्शंस इन अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एंड मैनेजर फंक्शंस इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। इंपॉर्टेंस, मैनेजर इज नेसेसरी टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी एंटरप्राइज, लीडर इज नॉट एसेंशियल। तो मैनेजर तो उन्होंने रखना ही रखना है हर ने, लेकिन लीडर जो है वो अपने आप बन जाता है, वो कोई प्रॉपरली रखते नहीं है, and he is not essential for any organization, but manager is. Then last of all the managers are leaders, so they enjoy dominating position, but all the leaders are not managers. So जब हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसको कोई एबल लीडर देख रहा है, तो वी आर टॉकिंग कि उसको अगर मैनेजर एबल देख रहा है तो वो जो है सक्सेसफुल पाथ पे चलना शुरू कर देती है। सो ऑल द मैनेजर्स आर अ लीडर, बट ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स। फंक्शंस ऑफ अ लीडर, तो ये फंक्शंस और नीड और इम्पोर्टेंस काफी रिलेटेड है। फंक्शंस ऑफ अ लीडर जो है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, मोरल बिल्डिंग, क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस, फैसिलिटेट्स चेंज, गोल सेटिंग एंड रिप्रेजेंटेशन। सो मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज मीन्स एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहना, काम के लिए प्रेरित करते रहना। कोई भी अगर कहीं किसी भी पॉइंट पे उदास हो जाता है कि मुझे मेरे काम का जितना मैं काम कर रहा हूँ उतना बैक नहीं मिल रहा है, तो लीडर का काम है उसको उत्साह से भरना। या कोई उदास हो जाता है मुझसे हो नहीं रहा है काम, तो लीडर को उसको प्रॉपर गाइड करना कि तुमने कैसे काम करना है, सो दैट वो उत्साह के साथ दोबारा काम करने लग जाए। क्योंकि जब उत्साहित एम्प्लॉय, मोटिवेटेड एम्प्लॉय काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, और एफिशिएंसी बढ़ने से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फायदा होता है, क्योंकि एफिशिएंसी जब बढ़ जाती है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। देन मोरल बिल्डिंग, अगेन उत्साह से भरना, हाई मोरल में काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे सारे एम्प्लॉयज। क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस, अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, हर एम्प्लॉय में ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करना कि वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो कर सकते हैं ये काम। सपोज किसी एम्प्लॉय की एरर काफी ज्यादा आ रही है और उसकी वजह से रिजेक्शन बहुत हो रही है, तो उसमें ये कॉन्फिडेंस भरना कि मैं अपना काम इम्प्रूव कर सकता हूँ। दिस इज फंक्शन ऑफ अ लीडर। देन फैसिलिटेट्स चेंज, ये कहाँ पे आ जाता है कि जैसे सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू मशीन, ऑटोमेटेड प्लांट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। तो जब ऑटोमेशन होती है तो बहुत सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर लेफ्ट आइडल, उनको जॉब मतलब उनकी जॉब चली जाती है। तो ये लीडर का काम है उनको एश्योर करवाना कि ऑटोमेटेड प्लांट से तुम्हारा काम थोड़ा कम हो जाएगा, बट यू विल नॉट लूज योर जॉब, और चेंज जो आ रही है उसको एक्सेप्ट करवाना। जैसे सपोज ऑटोमेशन के अलावा सपोज किसी काम में हम कंप्यूटर्स का यूज इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और जो पुराने लोग हैं दे आर नॉट रेडी टू लर्न कंप्यूटर्स, तो उनमें ये कॉन्फिडेंस लाना कि यू पीपल कैन लर्न कॉन्फिडेंस, लर्न कंप्यूटर्स एंड चेंज ब्रिंग अबाउट करनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, और ताकि सारा काम जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से होने लग जाए। देन गोल सेटिंग, गोल सेटिंग का क्या मतलब है, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वही अपने एम्प्लॉयज के, अपने सबॉर्डिनेट्स के, अपने फॉलोअर्स के गोल्स सेट करना उसके हिसाब से, ये लीडर का काम है। देन रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि लीडर एक्ट्स एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज फॉलोअर्स टुवर्ड्स अपर मैनेजमेंट और मिडल मैनेजमेंट। किसी को भी अगर उनकी एम्प्लॉयज की कुछ प्रॉब्लम है तो मैनेजर को किसने बतानी है, लीडर ने बतानी है। सो ही इज रिप्रेजेंटेटिव, ही इज देयर रिप्रेजेंटेटिव। अपर मैनेजमेंट के साथ जाके कुछ डिमांड्स की बात करनी है तो कौन करेगा, ये लीडर करेगा। सो दीज आर फंक्शंस ऑफ लीडर। द नेक्स्ट इज क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लीडर। नाउ देयर आर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज विच आर डिजायरेबल इन अ गुड लीडर। किसी में ये सारी क्वालिटीज हों तो जरूरी नहीं है फिर भी कि वो गुड लीडर ही है। देयर लीड्स टू बी लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू बिकम अ गुड लीडर, राइट। सो वी विल in general talk about these। जैसे फिजिकल अपीयरेंस, तो डील डॉल अच्छा होना चाहिए उस पर्सन का। देन हाई इंटेलिजेंस, ही शुड बी वेरी इंटेलिजेंट, समवन हु ग्रास्प्स फैक्ट्स एंड फिगर्स वेरी क्विकली। जो भी फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं उनको बहुत क्विकली, बहुत जल्दी ग्रास्प कर ले, समझ ले, और जरूरत पड़ने पर उनको अप्लाई भी कर ले। देन द पर्सन शुड बी इमोशनली स्टेबल, ही शुड हैव इमोशनल स्टेबिलिटी।
छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं होना चाहिए उस पर्सन को, और छोटी छोटी बात पे ही टेंशन में पैनिक नहीं करे, बट ही शुड बी इमोशनली स्टेबल, शांत टाइप होना चाहिए. देन ही शुड हैव गुड रिलेशंस, गुड ह्यूमन रिलेशंस, आपस में अच्छे रिलेशन होने चाहिए विद peer level also, with some followers also, and with top managers also. Then motivating skills होने चाहिए. ये हमने पहले भी देख लिया, फंक्शन में देख लिया, नीड में देख लिया कि मोटिवेशन जो है एम्प्लॉयज को मोटिवेट बार बार करना पड़ता है, तो ऐसा लीडर होना चाहिए जो अच्छे से मोटिवेट कर सके. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें काफी अच्छे होने चाहिए ताकि वो अपने से टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ बात कर सके, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता सके, और जूनियर्स को, फॉलोअर्स को कन्विंस कर सके अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कोई बात बोली है इस तरीके की कि इनको कन्विंस कराया जाए. देन ही शुड हैव गुड टेक्निकल स्किल्स ऑल्सो, क्योंकि अगर उसको नॉलेज होगी सारी मशीनरी की, सारे प्रोसेस की, देन ओनली ही कैन कन्विंस हिज फॉलोअर्स कि कहाँ पर हम सही कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं सही कर रहे हैं. देन ऑब्जेक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक मीन्स ही शुड वर्क ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स. क्या मतलब है कि जो फैक्ट्स जिस बात से रिलेट करते हैं उनको वहीं पे यूज करना चाहिए. दिस इज ऑब्जेक्टिविटी. देन सोशल स्किल्स, लोगों के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता होने चाहिए सो दैट ही कैन अप्लाई देम अकॉर्डिंगली. उनको मोटिवेट करने के लिए उसको सही तरीके से यूज कर सके उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को. देन सेल्फ कॉन्फिडेंट, ही शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ही कैन गेट दिस वर्क डन. क्लैरिटी ऑफ विजन एंड फार साइटेडनेस, उसको क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूर तक उसको सही साफ नजर आना चाहिए. इसका मतलब ये है कि फ्यूचर देखने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है. देन इनिशिएटिव, ही शुड बी एबल टू टेक इनिशिएटिव, किसी काम को करने के लिए पहल उसमें करने की हिम्मत होनी चाहिए. ठीक है. सो इनिशिएटिव फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज फॉलोअर्स. एंथुसियाज्म, उत्साह होना चाहिए हर काम का, और दूसरों में भी भरने की कैपेसिटी होनी चाहिए. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स दूसरों को काम दे सके, उनको बोल सके कि तूने ये काम करना है. अब अगर सपोज कोई लीडर ऐसा है कि जो अपने फॉलोअर्स को काम बोल ही नहीं सकता कि तूने ये काम करना है, तूने डायरेक्शन नहीं दे सकता, और उनको काम देने की बजाय खुद ही करता रहे, तो ही कैन नॉट बी अ गुड सक्सेसफुल लीडर. देन ही शुड बी ओपन माइंडेड, ही शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ, और नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों को के ऊपर ध्यान ना देके खुली सोच वाला व्यक्ति होना चाहिए. फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए सो दैट अगर कोई डिसीजन गलत हो जाता है तो उसको टाइम पे सुधार करके चेंज कर ले वो. डिसाइसिवनेस मीन्स उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिसीजन ले सके किसी पॉइंट पे आके. सपोज कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर उसको डिसीजन लेना पड़ता है येस और नो, तो ही शुड बी able to take decision very quickly. Then he should be sincere, honest and integrated. And he should maintain a positive attitude. So this is all about today's lecture. In case you have any query, you can contact me.